Hey guys, welcome back to the channel. My name is Nishan Srivastava and I'm your verbal ability guide for IPMAT UG Entrance Examination CUD. For any details inquiry, you can call us at 7524833567. The Telegram link is in the description box. Do join the Telegram channel for recent updates related to your examination. So we are meeting today after a short gap of 5 to 6 days, I think. Yeah. So today we are going to discuss about some last minute tips for IPM Rohtak examination that is going to be on 20th, that is tomorrow. And I will be discussing some insights with you about the Rohtak firstly, and secondly the important thing I will be discussing at the last, that is for JIPMAT and IPM Indore. So I will tell you later on. Let's start with the session. First thing, the important tips that I will be sharing with you that you should know before going to exam. First of all thing, be positive, keep your mind clean and calm both. Clean मतलब कोई mess नहीं चाहिए and calm मतलब be quiet ना. Don't think कि ऐसा होगा वैसा होगा. Don't come to the negative points. Just be positive and just easy on yourself. बहुत मेहनत कर ली आप लोगों ने. You have done enough till now. Now it's time to rest. So spend some time relaxing your mind. If you have given your best till now, then it's enough for now. You do not need to go through more topics, more revision, more things. That is enough. This is the night for you to get comfortable and have a very good night's sleep. A comfortable good night's sleep is very essential for your examination, that is tomorrow. So get a good sleep. Take 1 second. Get a good sleep and have a comfortable good night. Okay. Secondly, collect all your things required in the examination the night before, that is today. You have to collect all the documents, pen, paper, whatever the things are for your examination. You need to collect it and keep it aside so that आप कल के लिए पैनिक ना हो जाओ कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, where is the admit card, where is the things, where are the photos. Okay, so collect all the things and keep it aside keep it aside on a table or something that you will take tomorrow. Okay, second thing, एडमिट कार्ड जरूरी है. एडमिट कार्ड को हल्के में ना ले, आज ही निकलवा ले. अगर अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो आज ही निकलवा ले, कल सुबह का वेट ना करें बिकॉज सुबह बहुत एम्बिग्यूएशन हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाएंगी. एडमिट कार्ड अभी करवा ले अगर आपके पास नहीं, अभी तक अगर आपने नहीं निकलवाया है तो. एंड इम्पोर्टेंटली 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी. यू नीड 2 पासपोर्ट साइज फोटोज. जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन फिर भी रखिएगा बिकॉज अगर आपकी फोटो में कोई भी गड़बड़ी हुई, बिकॉज दे नीड टू पेस्ट इन द अटेंडेंस शीट. ओके, you can carry the pen with you, but it should be transparent pen. Okay, ID card is most important. और एक चीज, that the name on the ID should be same as in your form that you have filled for Rohtak and your mark sheet also. So IDs अगर नाम डिफरेंट है तो उसको मत कैरी कीजिएगा, वही ID कैरी कीजिएगा जिसमें आपका नाम फॉर्म में और मार्कशीट के साथ मैच कर रहा हो. ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भाई आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी लिखा है, बिकॉज कुछ इंसाइट्स होती हैं ऐसी जो कभी कभी आपको बताई नहीं जाती हैं, वो एडमिट कार्ड पे ही मेंशन होती है. एग्जाम्पल, उन्होंने कहा बेल्ट नहीं पहन के आनी है. एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, उन्होंने कहा कि बेल्ट नहीं पहन के आनी है. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेल्ट पहन के आए, फिर उसको बेल्ट रखने का मतलब हैसल ले रहे हैं. तो इस हैसल से बचने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पहले से पढ़ लीजिए. इट विल बी रियली गुड फॉर यू. And importantly, be hydrated during the examination, before the examination, because weather is hot outside, it's really hot outside, and if you are not hydrated you can get sick or you can have dizziness. So it's better to keep yourself hydrated. You can carry a water bottle that should be transparent bottle you can carry for with you. I think that is allowed. Okay, now moving forward, non-carrying items that are mentioned in the instruction should not be carried by you. मतलब उसको बिल्कुल आप घर पे ही रखाइए तो बहुत बेहतर है. और अगर आपके पास इफ यू आर गोइंग विद अ व्हीकल और थिंग, मतलब सेंटर पे रखने का हैसल ना पालिए तो इट विल बी गुड.
बिकॉज लाइन लगा के सेंटर पे देन आपको सामान जमा करना पड़ेगा, यू नीड टू सबमिट द सम ओके द थिंग्स, देन यू आर फॉर गेटिंग बैक द थिंग्स यू आर अगेन गोइंग टू स्टैंड इन द क्यू। सो उस हैसल से बचने के लिए आप ये उसको हटा ही दीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब ये क्या चीजें हो सकती हैं, मेनली गर्ल्स के आइटम्स हो सकते हैं, पेंडेंट्स हो सकते हैं, इयर हो सकते हैं, रिंग्स हो सकती हैं, तो इन सब चीजों को रिमूव करके आप पहले से ही आए, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रीच द एग्जाम सेंटर बाय 8, लेटेस्ट बाय 8, बिकॉज 8:30 उन्होंने कहा है कि वी विल क्लोज द गेट्स, गेट क्लोज हो गए, यू विल नॉट गेट द एंट्री, चाहे कुछ भी हो जाए। सो कीप इट बाय 8, लेट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका घर दूर है तो आप उस अपने डिस्टेंस के हिसाब से निकले, इफ यू आर नियर बाय एटलीस्ट 1 आवर का आप गैप लेके चले, ओके। ओके, ये मैंने पॉइंट बड़े सोच समझ के लिखा है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। डिसाइड योर गेम प्लान आफ्टर डिसाइडिंग द मतलब रीडिंग द इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा कि इसका लॉजिक क्या है एक्चुअली। आपका गेम प्लान आज डिसाइड हो जाना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू डू। आज क्या आपका पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपका गेम प्लान आज आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो, ओके। एंड फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों का कि अगर एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चंस आ गए, मतलब रोहतक 2019 से शुरू हुआ है, उसके बाद से जो भी क्वेश्चन आए हैं 2022 तक, उसका एक सर्टेन लेवल है, उस लेवल से अगर ऊपर के क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। सो इस केस में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इस केस में क्या आपके पास पेपर ही करने में 3 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन जो आपका इजी क्वेश्चन आएगा, यू कैन डू इट। एक क्वेश्चन आएगा जो कि इजी होगा या मॉडरेट लेवल का होगा और आप उसको सॉल्व करेंगे अगर, सो इट विल बी डन, इज सॉल्वेबल होगा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। एक होगा जो कि डिफिकल्ट होगा और अनसॉल्वेबल टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपको मे भी नहीं आता हो, तो उसको आप छोड़ ही सकते हैं ना, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लाइक दिस, कि आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, यू कैन इजिली लीव द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन छोड़ने में कभी भी हिचकिएगा नहीं, चाहे वो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी आती हैं कि मे बी वो क्वेश्चन आपने पढ़ा है और आपके दिमाग से एकदम ब्लैंक आउट हो गया वो क्वेश्चन, उस केस में आप क्वेश्चन को छोड़ने में कुताही ना करिए, बिकॉज योर टाइम इज लिमिटेड, यू नीड टू डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द गिवन टाइम। अगर आप एक क्वेश्चन पे ही टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, तो आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। और एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन किया, आपने उसको 1 मिनट दिया शुरुआत के, लेकिन उसमें 2 मिनट लग गया, ठीक है। 2 मिनट देने के बाद आपको ये लगा कि अरे यार अब ये क्वेश्चन मैंने 2 मिनट दे दिए हैं, आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर आपने 5 मिनट दे दिए और ऐसे ऐसे करते 6-7 मिनट दे दिए। सो आपका एक क्वेश्चन में 7 मिनट वेट हो गया, वेस्ट हो गया, जो कि आपका 1 मिनट का क्वेश्चन था मात्र, और आपने 7 क्वेश्चन छोड़ दिए 7 मिनट्स के कैलकुलेशन के। 7 क्वेश्चन छोड़ने से बेटर है कि एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ओके। तो तब क्वेश्चन का सीधा सिनेरियो, अगर आपको नहीं आता, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट लीव इट। अब what I'm talking about the instructions here, I'm going to explain you here exam pattern। actually exam pattern मैंने क्यों कहा, सबको पता है एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन आपके जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें मेंशन था कि देयर विल बी सेक्शनल टाइमिंग्स आल्सो, ठीक है। बट ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इससे पहले वाले पेपर में भी मेंशन था, 2022 में भी मेंशन था, उससे पहले भी मेंशन था, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं थी। मे बी उनका मूड अलट जाए, दे माइट गेट एक्साइटेड, है ना। सो you might face a problem with sectional timings also. So there are two types of scenario, one with a without sectional timings and one with a sectional timing। अब विदाउट सेक्शनल टाइमिंग आप लोगों ने मॉक्स लगाए होंगे, तो विदाउट सेक्शनल टाइमिंग वाले ही मॉक्स लगाए होंगे 99% ऑफ टाइम्स, ओके। तो उसमें तो आपका सीधा फंडा है, यू नीड टू डिसाइड वेदर व्हाट यू गो टू द, आपको पहले किस सेक्शन के साथ जाना है। मोस्ट प्रोबेबली वर्बल के साथ जाइएगा, सबसे कम टाइम लेता है ये, अगर आपकी वर्बल अच्छी है तो अराउंड 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स के अंदर ये हो जाना चाहिए। उसके बाद एलआर पे जाइएगा, जो कि अराउंड वही 30 to 35 मिनट्स में हो जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली 40, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। उसके बाद आप क्वांट्स पे जा सकते हैं, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम बचेगा, आई थिंक इसकी कैलकुलेशन के बाद 1 आवर के अराउंड बचेगा आपके पास। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू।
You can totally invest in quants because I know quants is a tough thing to crack. ऊपर से इसमें quants में आपका कोर्स भी लेंदी है थोड़ा सा, सो इट विल टेक टाइम. सो यहाँ पे तो आप अपना टाइम जो है डिवाइड कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग. बट सेक्शनल में यू विल गेट अराउंड 40 मिनट्स फॉर ईच, है ना. 120 डिवाइड बाय 3 इज 40, तो 40 मिनट्स ईच आपको मिलेंगे. वर्बल एबिलिटी तो आपका कम टाइम में हो जाएगा, एलआर भी आपका कम एग्जैक्ट टाइम में ही हो जाएगा. बचेगा क्वांट्स. क्वांट्स के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि यू नीड टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन वर्बल एबिलिटी एंड एलआर. अगर आपका स्कोर यहाँ पे 38 30 सॉरी 1 सेक, अगर आपका लेट मी 35 से 38 के बीच में भी चला गया और यहाँ पे आपका 38 से 40 के बीच में भी चला गया कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वांट्स में अगर आप 20 से 25 के बीच में भी क्वेश्चन कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो. 100 क्वेश्चन के ऊपर आप कर रहे हो यहाँ पे, 100 क्वेश्चन इंटू 4 मीन्स 400 मार्क्स, मोर देन द हाई कट ऑफ, so you will clear the examination very good. So this is for the pattern. Now moving to the cutoffs. If I'm talking about Rohtak in 2019 it was 256. 20 में पेपर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो हाफ कर दिए गए थे. 120 से 60 पे आ गए थे क्वेश्चंस. मार्क्स भी हाफ कर दिए गए थे ऑब्वियसली, तो कट ऑफ भी उसी के रिस्पेक्ट में जनरेट हुई, तो इट विल बी अराउंड 144 अराउंड कट ऑफ थी. 21 में 265 थी. 22 में अराउंड 200 सॉरी आई एम सॉरी इट्स 306 प्लस और अराउंड 300 थी, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है. सो कट ऑफ इसी के आसपास थी. सो अब बात करते हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन 2023, है ना. बच्चे ये पूछते हैं, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है कि 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है. देखो, इफ यू वांट टू प्ले अ सेफर गेम देन देयर आर टू सिनेरियोज. सिनेरियो नंबर 1, आपके बोर्ड्स में 90 प्लस परसेंटेज के अराउंड आए हैं तो आपका 350 के अराउंड चल सकता है. 80s में आए हैं तो गो टू 360 प्लस. ठीक है, 360 प्लस आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, या 360 और 360 प्लस आपका काम चल जाएगा यहाँ पे. तो ये कट ऑफ हो गया है. बाकी इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द पेपर. अगर पेपर का लेवल अच्छा है तो कट ऑफ लो चली जाएगी, लो या एवरेज चली जाएगी. अगर पेपर का लेवल कम है तो कट ऑफ उतनी ही ज्यादा चली जाएगी. सिंपल सा लॉजिक है. सो कट ऑफ के बारे में कोई जजमेंट देना अभी कोई नहीं है, लेकिन हाँ, this is a very good safe score for you. And one thing more before thank you, I'm just sharing a strategy that you can use in your examination you can use in examination tomorrow. Simple strategy है, लेकिन ये strategy सिर्फ आपके उसी पेपर में काम आएगी जिसमें आपके पास सेक्शनल टाइमिंग नहीं है. विदाउट सेक्शनल टाइमिंग क्या है, बहुत सिंपल सा है. स्टेप 1, स्टेप 1 में आप क्या करते हो, यू गो थ्रू द होल पेपर. सेक्शन का कोई मतलब नहीं, वर्बल भी जाओगे, एलआर भी जाओगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखोगे और उसमें से सिर्फ वाले क्वेश्चन करोगे जो आपकी आंख से देखते ही आपको पता चल गया कि हाँ, यू हैव सीन द क्वेश्चन एंड यू हैव नोन द आंसर. टिक लगा दिया देखते ही. मोस्ट इजी क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इजी क्वेश्चन जो होंगे वो कर लो आप. यहाँ पे अराउंड 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी सेक्शन में आते होंगे. अगर आपने प्रैक्टिस एम्पल ऑफ कर रखी है, फिर प्रैक्टिस इनफ, सो आप यहाँ पे 30% क्वेश्चन ये करके जाओगे. राउंड नंबर 2, आपने पूरा पेपर तो ऑलरेडी आप 120 क्वेश्चन देख चुके हो राउंड 1 में. अब आपको पता है कि इजी को तो आप कर चुके हो, अब वो आपको भी क्वेश्चन ये पता चल जाएंगे व्हाट आर द क्वेश्चन दैट आर डूएबल. थोड़ी सी दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एनालिटिक्स लगानी, एंड यू विल बी इजीली एबल टू डू द क्वेश्चन. वो कर लोगे आप. वो अराउंड 60 से 70% ऑफ द क्वेश्चन होंगे. 60-70% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 50 से 60% ऑफ द क्वेश्चन इस कैटेगरी के होंगे. यहाँ से 20 से 30 होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपका हो गया मेजर पेपर. आपका इन 2 सेक्शन पे सॉल्व हो जाएगा. बचा थर्ड सेक्शन. यहाँ पे आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो क्वेश्चन करोगे जो कि डिफिकल्ट आपको लग रहे थे, लेकिन आपको पता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा टाइम दोगे, और डिफिकल्ट है लेकिन आप अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आप इसको कर सकते हो. तो ये अराउंड 10% ही होता है, ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज
रोहतक एग्जामिनेशन इतना लेवल नहीं आता, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। ओके, तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज इन एग्जामिनेशन। इससे फायदा ये होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो बच्चों को बेसिक शिकायत होती है कि क्वेश्चन छूट गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि पेपर छूट गया, क्वेश्चन छूट गया सर, अरे वो लास्ट के क्वेश्चन तो बड़े इजी थे, मैं कर ही नहीं पाया, उसको मैं देख ही नहीं पाया, बाद में देखा तो पता चला बहुत इजी थे, मतलब मेरा स्कोर फाड़ जाता। तो ये सब बकवास है। आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में आपको गो थ्रू करना है पूरे पेपर को एक बार में ही, और उसमें से इजी क्वेश्चन जो जो आपको दिखते जा रहे हैं जस्ट टेक इट, उनको मार्क करते जाइए। सेकंड में जब आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो यू विल नो व्हाट आर द क्वेश्चन, और यू कैन राइट इट डाउन ऑन द पेपर। पेपर पे आप लिख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके सेक्शन 2 में आप करेंगे। जब सेक्शन 1 आप पढ़ें, स्टेप 1 पढ़ रहे हो तो लिखते भी जाएं, ठीक। देन आप सेकंड सेक्शन में क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपने सॉल्व करोगे जहां पे सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है या जो आंखों से देख के नहीं हो सकते। यू कैन, जैसे आरसीज है आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन एलआर की डीआई वाला क्वेश्चन, डीआई आई थिंक, हाँ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स। एंड थर्ड लेवल में जो क्वेश्चन बचेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन बच गए हैं लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस, वो आप देख सकते हैं, बिकॉज जो बचे होंगे यहाँ पे वो ना ही इजी होंगे ना ही मॉडरेट होंगे, वो डिफिकल्ट लेवल के ही होंगे जो बचे हैं। सो आप, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको देख सकते हैं, यू हैव द एम्पल ऑफ टाइम। टाइम कैसे डिवाइड करना है, जिस परसेंटेज में आपका ये नंबर डिवाइडेड है उसी परसेंटेज में आपको टाइम डिवाइड करना है। टाइम यहाँ पे 20 से 30% ऑफ द टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। अगर मैं टाइमिंग्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं मैक्सिमम 15 मिनट्स बहुत हैं आपके लिए पूरा पेपर गो थ्रू करने के लिए। 15 मिनट्स के बाद ये मेजर टाइम आप यहाँ डिवोट करोगे, अराउंड 1 आवर का टाइम, आई थिंक 1 आवर से ज्यादा भी दे सकते हो, बिकॉज 2 घंटे का पेपर है, आराम से दे सकते हो, 1 आवर प्लस का टाइम यहाँ दे सकते हो। और अगर आपके पास लास्ट में 15 to 20 मिनट्स भी बच जाते हैं, सो आप डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, ओके, फ्रॉम माय साइड, एंड वी विल मीट टुमारो आई थिंक। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि जिपमैट का पेपर जो है, it's on 28th. So I will be sharing about 5 mocks of good level that are going to come in the examination. Yeah, that are going to come in the examination on upcoming days. I'll upload them on the channel here, I am Blasters, by 11 p.m. daily, on daily basis. This will be done on the daily basis. So 5 mocks will be more than enough. और इम्पोर्टेंटली एक चीज और आपसे मैं कहना चाहूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे जो मैं क्वेश्चंस डालता हूँ फॉर वर्बल एबिलिटी, या अनदर एलआर के सर भी डालते हैं, क्वांट्स के सर भी आई थिंक डालने लगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं डालता हूँ बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिटी वाले क्वेश्चन जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमेशा आगे निकलेंगे नॉर्मल बच्चों से, बिकॉज आपको एज मिल रहा है, और वो क्वेश्चन जो मैंने वहां पे डाले हैं दे आर रियली गुड, ठीक है। So this is all for today. Best of luck for the examination, or do well. You have learned enough for the examination. Just rest it out on today and just पढ़ के आना कल यार, okay? इतना टफ नहीं है जितना टफ आप हो। So this is all for today. This is Nishant Srivastava signing off. Thank you and best of luck again.